Hello friends, good afternoon. Good afternoon, sir. Hello, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay. So, how is the journey of Mahism? माइज्म की जर्नी आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी सर, वेरी नाइस। डॉक्टर हैनीमैन ने 12 इयर्स उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ के उसमें स्पेंड किए फॉर इन्वेंशन ऑफ माइज्म, और हमने 8 दिन में माइज्म पढ़ लिया, राइट? और उन्हें माइज्म समझने के लिए, माइज्म लिखने के लिए 12 साल गंवाने पड़े। यस सर, 12 साल का स्टडी था उनका। सर, उनके पास गुरु नहीं थे ना। वही तो सबसे महान गुरु है। हाँ हाँ सर, वो सबसे गुरु है ना? यस। तो इतना मतलब 12 साल लाइफ के रात दिन कोई चीज ढूंढने में अगर कोई लगाता है तो वो चीज का इम्पोर्टेंस कितना होगा, क्या इम्पोर्टेंस होगा, मतलब थ्योरी ऑफ माइज्म कितना इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द होम्योपैथी, है ना? पॉइंट ऑफ होम्योपैथी। विदाउट दिस theory of miasm, homeopathy is nothing, right? So today we will see chapter number 13, miasm defense and genetics. तो अभी तक हमने miasms in the form of symptoms, in the form of disease, pathology, pathogenesis ये देखा। Now at cellular सर वीडियो ब्लिंक कर रहा। जेनेटिक लेवल हम अभी देखेंगे। यस यस बोलिए। वीडियो ब्लिंक कर रहा है सर। हाँ, वो अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, एक बार किया था थोड़ी देर के लिए, अच्छा हुआ वापस हो गया। yes. तो defense and genetics, defense and miasm, we proceed to see what influence does defense and miasm have on man. If the genetic code of the individual is tainted, if the genetic code of the individual is tainted with or polluted with or have traces of certain behavior, it is bound to lay an impact on every part of the cell and individual. तो अभी तक हमने ये देखा था कि बॉडी अगर टेंटेड हुई, बॉडी अगर पोल्यूटेड हुई तो क्या होगा। नाउ अगर जीन्स ही टेंटेड है, जीन्स ही पोल्यूटेड है, तो किस तरह से वो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, किस तरह से वो बॉडी बिल्टअप होगा, किस तरह से उसका माइंड होगा, और किस तरह के डिजीज वो लाइफ लॉन्ग सफर करेगा, ये हम अभी इस चैप्टर में देखेंगे। द फिजिकल स्ट्रक्चर, द सर्वाइवल is only of the fittest. The fittest survives because it evolves a strategy to defend itself. Yes. This strategy is encoded in the genetic code. Every species has its own specific genome. Every genome has its common mode of defense encoded in its genetic code plus the individual mode of defense. Yes. ये genetic code कहाँ होता है? In the genes. और जीन्स में क्या होते हैं? तो प्रोटीन। तो वो उस
प्रोटीन्स में होगा, वो प्रोटीन्स इस तरह से सिंथेसाइज होंगे और वो पोल्यूटेड होंगे थ्रू द माइजम्स। तो किस टाइप के जीन्स सिंथेसाइज हुए, उसमें क्या, कौन सा माइजम पोल्यूटेड है, फिर वो जीन्स, वो प्रोटीन्स अकॉर्डिंग टू दैट माइजम उस बॉडी स्ट्रक्चर, उस माइंड स्ट्रक्चर को बनाएगा। यस, सो it is very obvious therefore that every species of animal is so different from the other. Rabbits do not frighten anybody. Why? Because rabbits genetic structure ऐसा बना है कि उससे कोई डर ही नहीं सकता, right? So dogs may or may not. कुछ डॉग से लोग डरते हैं, कुछ डॉग एकदम क्यूट होते हैं, उनसे डर नहीं लगता। So tiger and lion frightened everybody without exception. और टाइगर लॉयन की जीन्स ही ऐसे है, उनको ऐसा बनाते हैं कि उनका नाम भी लिया तो लोग डर जाते। So all these species have their genes so encoded that they are either timid like a rabbit or cow or a cat, or they are too aggressive like a tiger or lion. The genome of dogs could have either qualities. Some dogs may be very timid. On the other hand, there may be others who are ferocious as tigers. This again highlights that though dogs belong to the same species, there is individuality which counts. These innate qualities have been so designed depending upon the needs of that organism to fight for survival. Yes. तो ये जो भी उनके जीन्स में एनकोडेड होता है, पोल्यूटेड होता है, ये बिकॉज फॉर द सर्वाइवल होता है। उसे वही जो मिला है जीन्स में, जो जीन्स ने लाया है, जीन्स में एनकोडेड है, वही चीज है जिससे हर इंसान, हर प्राणी एक दूसरे से अलग करता है। यस, दैट्स gives rise to individuality. So this is true for all human beings as well as we know the genes make a man or any living being. The genes are responsible for their physical structure, mental makeup, and the other tolerances, intolerances, or susceptibilities. If genes have timidity and lack of will as one of the qualities, then compensatorily, there are other qualities the genes have to or must develop to create a balance so that individual survives. For example, if an individual possesses the gene of timidity with will, then it is obvious that this timidity can never make him fight a battle for survival. Yes. So this quality cannot give him toughness needed to frighten or fight the opponent. Therefore, it has to be endowed with the innate characteristics to escape the quality, to resign, to be mild with no confidence in oneself, or to be bashful, or to hide, etc. All these negative innate characteristics basically develop as a reaction of the negative will. Yes. We get all information is encoded in the genes. जीन्स ठहराते हैं कि ये पर्सन किस टाइप का होगा, टिमिड होगा, करेजियस होगा, बोल्ड होगा, फास्टिडियस होगा, बाशफुल होगा, है ना, लाइक दिस। और ये क्वालिटीज जैसे टिमिडिटी, बाशफुलनेस और करेजियस, कवार्डाइज और quarrelsome, पॉजिटिव, निगेटिव, ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स उस जीन्स में आए हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अकॉर्डिंग टू माइजम। माइल्डनेस, एंगरनेस, all these are qualities exhibits that person according to the polluted miasm. Yes. So all these qualities that the individual possesses are to defend its
itself from hostility to guard itself and thereby prolong life. और ये जो क्वालिटीज आए हैं, ये जैसे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तो डिफेंस किस तरह से डिफेंस होता है, बॉडी किस तरह से डिफेंस करती है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं डिफेंस ऑफ जीन्स पढ़ रहे हैं, तो जीन्स में जो कैरेक्टरिस्टिक्स आए, जो जीन्स पोल्यूटेड है, टेंट है, ये ओनली एंड ओनली फॉर द डिफेंस है, राइट। जो भी मायाजम आएगा, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, जो भी उसका नेचर बनेगा, जो भी उसका फिजिकल स्ट्रक्चर बनेगा, ये ओनली फॉर सर्वाइवल होगा। सर्वाइवल बढ़ाने के लिए, लाइफ बढ़ाने के लिए जो डिफेंस उसे लाइफ लॉन्ग करना पड़ेगा, उस डिफेंस के लिए ये सब दिया हुआ है। ओके, सो ऑल दीज क्वालिटीज दैट द इंडिविजुअल possesses are to defend itself from hostilities, to guard itself and thereby prolong life. On the other hand, if the individual has a positive will, he will develop lots of confidence, pertinacity, obstinacy to help him in perseverance, and may also develop aggression, anger, rage as it main weapon. Yes. तो जो पर्सन पॉजिटिव होते हैं उनमें एग्रेसिवनेस रहेगा, कॉरलसमनेस रहेगा, करेजियसनेस रहेगा, ऑब्स्टिनेंसी रहेगी, हॉटीनेस रहेगा, पर्टिनेसिटी रहेगी, कॉन्फिडेंस भर भर के रहेगा। दिस इज इंडिकेट्स दैट दैट पर्सन इज वेरी पॉजिटिव माइंडेड पर्सन। वही इससे टोटल अपोजिट सोचेंगे तो जो निगेटिव होते हैं उनका ऑलवेज टिमिड माइंड है ना, डिस्करेजफुल, विड्रॉलनेस, रिजाइननेस, ये सब क्वालिटीज उसमें होंगी और ये सब इनकोडेड होता है इन द जीन्स। व्हाट इज ट्रू इन मेंटल प्लेन इज आल्सो ट्रू ऑन द फिजिकल प्लेन। जो मेंटल प्लेन पे होगा, मतलब जो माइंड बना हुआ है, उसी तरह से उसकी बॉडी बनेगी। इसीलिए रैबिट कैसे होते हैं, माइंड होते, तो उसकी बॉडी भी उसी तरह से बनती है। इसीलिए हम रैबिट को डरते नहीं है। और वही उसके अपोजिट अगर लेंगे लॉयन, लॉयन जिस तरह से उसका माइंड है, एग्रेसिवनेस, अटैकिंग, डेंजर, उसी तरह से उसकी बॉडी बनी है, इसलिए उससे देखते बराबर हर कोई डर जाता है, right? So what is true in mental plane is also true on the physical plane. The features of the individual also develop in response to the basic nature. बहुत से लोग बोलते हैं कि हम चेहरा देख के पहचान लेते हैं कि इंसान कैसा है। यही वो क्वालिटी है कि जिस तरह से चेहरा होता है, जिस तरह से फिजिक होता है, जिस तरह से बॉडी बिल्ड होता है, उस पर से एक अंदाजा आ जाता है कि इस पर्सन का नेचर कैसा होगा, इस पर्सन का माइंड कैसा होगा, राइट। सो द फीचर्स ऑफ द इंडिविजुअल आल्सो डेवलप इन रिस्पॉन्स टू बेसिक नेचर, almost as a rule mild or easily tamed animals like a rabbit, sheep, cow, dog have their face, jaws and incisors projected ahead to form a narrow tapering face as if to frighten the opponent. इनका इतना बड़ा हेड दिया है ये सामने वाले को डराने के लिए। दिस इज ओनली शो ऑफ, बट उनसे कोई डरता नहीं है ना, क्योंकि हमें उनका नेचर पता है। काउ माइल्ड होती है इसलिए हम उससे डरते नहीं, क्योंकि उसका हेड सामने वाले को डराने के लिए बना है, बट उसका नेचर माइल्ड होता है इसलिए हम डरते नहीं। सो ऑन द अदर हैंड, लायंस एंड टाइगर्स फेरोशियस लुक डू नॉट नेसेसरी हैव टू मच प्रोजेक्शन टू एडवर्टाइज देयर कैनाइन। यस, उनको देख के ही इंसान डर जाता है, इसलिए उनका बॉडी देखो, उनका फेस, उनके कनाइंस देखो, दांत को देख के आप डर जाएंगे। वैसी सिंपल अगर एग्जांपल लेना है तो बंदर देखो, बंदर से मोस्टली लोग डरेंगे नहीं, उसे चिढ़ाते हैं, लेकिन जब उसे चिढ़ाते हैं तो वो दांत दिखाता है और दांत दिखा के डराता है। ये उसकी क्वालिटी कि अगर डरे नहीं तो वो दांत दिखाएगा तो लोग डर जाएंगे। सो इस तरह से कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं,
सामने वाले को डराने के लिए बॉडी फुला देते हैं लाइक दिस। ये उनकी क्वालिटीज है। बेसिकली दे आर टिमिड बट शो ऑफ, दैट इज द साइकोसिस। So similar things have been observed in humans too, not a rule, but many times timid Kalkriya patient have their upper teeth projected towards, yes. तो जिनके दांत सामने होते हैं, projected towards, these peoples are basically timid, but body ने लोगों को डराने के लिए नेचर ने उनके दांत सामने कर दी ताकि लोग डरे, है ना। आप देखो जो एनिमल्स के दांत सामने होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, जनरली हम उनसे डरते हैं। तो इसीलिए कल्किरियाज के दांत टिथ सामने होते, प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स फॉर ओनली डिफेंस मैकेनिज्म। सो ऑल दिस of course comes under the purview of physiognomy, which is not our topic here for now. It is only to heighten one fact that man is a structure and nature develops purely as a reaction to rather defensive reaction to hostile stimulus, which it faces from outside or from inside, and in terms of nature he possesses, yes. तो सिंपल इस पर से ये समझ में आता है कि बॉडी उसी तरह से बनेगी जिस तरह से उसका माइंड होगा। और कभी कभी जैसे कि माइंड टिमिड है लेकिन बॉडी को फॉर द डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी को डेंजर बनाया जाता है, ओनली फॉर द डिफेंस मैकेनिज्म, यस। सो द फिजिकल स्ट्रक्चर देयरफॉर इज डिफेंस ओरिएंटेड। अब अगर माइंड माइल्ड है, नेचर माइल्ड और बॉडी जैसे कि टिथ सामने दे दिए, कल्क्रिया बेसिकली माइल्ड है मेंटल्स में, और बॉडी को इतना लार्ज, है ना, रोब्यूस्ट, हाइटेड, लॉन्ग बोन्स ये बनाया गया। ये किस लिए? अब उसकी बॉडी देख के इंसान को डरना चाहिए, लेकिन उसका माइंड टिमिड होती है, इसलिए उन पर्सन से लोग डरते नहीं है। इसीलिए वो डराने के लिए, डिफेंस करने के लिए बॉडी को लार्ज बना दिया और टीथ को सामने रखा गया। और ये होता है बिकॉज ऑफ साइकोसिस, क्योंकि वहां साइकोटिक माइज्म इनबिल्ट है जीन्स में, जीन्स पोल्यूटेड है बिकॉज ऑफ साइकोसिस। सो दैट्स व्हाई उस तरह की बॉडी बनती है। सो द फिजिकल, तो ये बात समझ में, ये बात यहाँ क्लियर हो जाती है कि जो माइज्म जीन्स में होगा उसी तरह से बॉडी स्ट्रक्चर एंड मेंटल उसके डेवलप होंगे। द फिजिकल स्ट्रक्चर देयरफॉर इज डिफेंस ओरिएंटेड। Physical reactions, the tolerance, intolerance to the various stimuli like sun, wind, rains, damp, cold, heat, noises, colors, touch, emotions further decide how the concerned individual should react in different circumstances. These reactions to situations, that is the general makeup of an individual, are basically defense mechanism at work and hence defense oriented. These are influenced by the genetic code. तो जिस तरह से फिजिकल मेंटल्स डेवलप होते हैं, तो फिजिकल्स में जैसे कि कोई पर्सन किसी चीज को सेंसिटिव है, जैसे कि सन है, वाइंड है ना, तो ये क्यों? because of that genes, genetic makeup, yes. So mentals में अगर कोई सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म है, सेंसिटिव टू रिफ्राइमेंट्स है, ये बिकॉज ऑफ हिज डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस के लिए दिया है कि सेंसिटिविटी अगर इसमें रहेगी तो ये इंसान उस चीज के आगे नहीं जाएगा, वो बात के आगे नहीं जाएगा, वो बात को क्रॉस नहीं करेगा ताकि वो सेफ रहे। Yes, so reactions solely depend on the intelligence of the individual. The intellect, will, morals, etc. will allow the person to react according to needs and the circumstances to form a defense. Yes. तो हर इंसान अपने डिफेंस के लिए रिएक्ट करेगा,
अगर कोई पर्सन सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म है ना, तो उससे पता है कि नहीं, मैं अगर क्रिटिसाइज करूंगा, मैं अगर कुछ बोलूंगा तो सामने वाला और भड़केगा और मुझे क्रिटिसाइज करेगा, इसलिए ये पर्सन चुपचाप रहेगा, विड्रॉल लेगा, रिजाइन कर देगा उस सिचुएशन से। दिस इज द, ये क्यों हुआ? बिकॉज ही इज सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, और ये रिजाइन कर रहा, दैट मीन्स ही इज अ टेमिड पर्सन। तो ये उसका डिफेंस मैकेनिज्म है ना। सो इसीलिए सर ने कहा है कि जो इंटेलिजेंस है, मतलब रिएक्शन सोनली डिपेंड ऑन द इंटेलिजेंस, टोटली डिपेंड ऑन द इंटेलिजेंस ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इंटेलिजेंस है कि अगर मैं वहां, कोई पर्सन मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है और मैं वहां जाके उससे और कुछ बोलूं, तो वो इंसान और भड़केगा और क्रिटिसाइज करेगा, झगड़ा हो सकता है। इसलिए उसमें वो पॉइंट दिया जाता है रिजाइन करने का, बिकॉज ऑफ टिमिड नेचर। तो ये उसका डिफेंस मैकेनिज्म का, और ये कहाँ से आया? तो उसके जीन से। और इसके अगेंस्ट अगर हम सोचते हैं कि अगर कोई पर्सन सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म है, अगर उसे थोड़ा सा भी कुछ बोला तो भड़क जाता है, मारने पे उतर आता है ना, बहुत बड़ा दंगल करेगा, झगड़ा करेगा। तो ये क्या है? ये भी उसका डिफेंस मैकेनिज्म, ये भी उससे जीन्स से ही आया है, ताकि इसने मुझे क्रिटिसाइज किया तो बाकी लोगों ने नहीं करने को ना, इसलिए मैं डिफेंस कर रहा हूँ। तो ये सब चीजें होते हैं इनकोडेड इन द जीन्स, और ये सब मिलता है जीन्स से, और ये उसी से ये कैरेक्टरिस्टिक ओपन होगी जो उसके जीन्स में माया जमा है। यस, सो allow the person to react according to needs and the circumstances to form a defense. These innate characteristics are characteristics of the reactive mechanism, the attitude, defenses together with susceptibility make up mental aspect of the individual, which in turn is governed by the genetic code of the individual. The genetic code decides the reaction of an individual to an action. देखो, सब कुछ जीन्स में होता है, इस पर्सन को माइल्डली रिएक्ट करना है कि एग्रेसिवली रिएक्ट करना है, डिपेंड करता है कि उसके जीन्स में वो क्या लेके आया है। यस, फॉर एग्जांपल, इफ अ पर्सन थ्रोज अ स्टोन on a group of people standing on the road, the reaction of every person is going to be different, governed by his individual genetic code. ये हम इमेजिन कर सकते कि ग्रुप ऑफ पर्सन्स अगर रोड पे खड़ा है और उनके ऊपर एक आधा स्टोन किसी ने फेंक दिया, तो हर इंसान एक जैसा रिएक्ट नहीं करेगा, है ना। 10 इंसान है तो जैसे ही कोई देखता है कि पत्थर अपने तरफ आ रहा है, स्टोन अपने तरफ आ रहा है, तो वहां से भागेंगे, कोई खुद को बचाने के लिए नीचे बैठ जाएंगे, इधर उधर झुकेंगे, इधर उधर भागेंगे, कोई सोचेगा कि आने दो, मैं कैच करता हूँ, वही स्टोन उसे मारूंगा। तो हर इंसान की रिएक्शन अलग अलग होगी। कोई किसी के समझ में नहीं आएगा, वो एक्शन लेने तक वो पत्थर आएगा और उसको लग भी जाएगा। कंफ्यूज्ड पर्सन, है ना, स्लो पर्सन, नॉन डिसिजिव पर्सन। तो हर किसी का रिएक्शन डिपेंड करता है उसके अंदर जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस दैट मीन्स जो जीन्स में एनकोडेड है उस पर। Yes, so one person could be fast. The different governed by the his individual genetic code. One person could be fast enough to see the stone coming at him and take evasive action. Another could be taken aback or surprised by the stone being hurled at him and become frightened or panicky. A third might not be keen or sharp enough to notice the stone at such a short interval of time and got struck badly or take a wrong evasive action. A fourth might get angry at the situation and can catch the stone and hurl it back at the thrower in protest. A fifth might not realize that what happened even after he is struck down. है ना। तो डिपेंड करता है उसके जेनेटिक कोड पे कि वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। सो सर ने यहाँ इसका एनालिसिस दिया है। एनालिसिस अकॉर्डिंग टू
मठरा मेडिका अकॉर्डिंग टू रेमेडीज यहाँ पे बताया कि कौन सी रेमेडी किस तरह से बिहेव करेगी। दैट मीन्स उस रेमेडी का जेनेटिक कोड कैसा है, उसका जेनेटिक कोड कैसे बना है, उसका जेनेटिक मेंटल मेकअप फिजिकल मेकअप कैसे बना है, तो अकॉर्डिंग टू हिज encoded genes, encoded information in the genes, yes, and according to the mechanism. So the first may be lachesis, because why lachesis? क्योंकि वो fast था, and snakes are very fast. So first one is lachesis, cannabis, opium, etc. A quick, intelligent mind which takes fast decisions. तो जो क्विक फास्ट डिसीजन लेने वाले होते हैं वो होते हैं लैकेसिस, कैनबिस, ओपियम। द सेकंड मे बी एकोनाइट, स्ट्रामोनियम, अर्जेंटिकम, बिकॉज फिनिकी, नर्वस, timid, impulsive, panicky personality whose every action is panic. कुछ होगा कि डर जाना, अरे बाप रे ये क्या हुआ, अब कैसा होगा, अब क्या होगा। These constitutions are stramonium, argenticum, nitricum, aconite, etc. The third is maybe calcarea, gelsemium, helleborus, baryta. Wrong action. Is too slow to take decisions and does not have direction of taking right decision. Confused personality, confused mind is calcarea, gelsemium, helleborus and baryta का। बहुत देर तक एक्शन ही नहीं लेंगे। कलक्रियास का देखो आप, कलक्रियास अगर रास्ते से जा रहा है और उसे कोई मिलता है, उसे हाथ दिखा रहा है कोई, तो ये देखेगा लेकिन उसके समझ में नहीं आएगा कि ये पर्सन कौन है। वो पर्सन चले भी जाएगा, फिर ये पीछे मुड़ के देखेगा, अरे यार ये वो था, वो मेरे ध्यान में ही नहीं आया। दिस इज कलक्रिया, वेरी स्लो इन रिएक्शन। बराटा भी वैसे ही होते हैं, हेलेबोरस भी वैसे ही होते हैं, वेरी स्लो। बहुत थोड़ी देर के बाद उनके ध्यान में आता है, अरे अब समझ में आया ये ऐसा था क्या। यस, सो दिस इज कलक्रिया, बराटा, हेलेबोरस, जलशिमियम आल्सो। Then the fourth may be a revolting type. Yes, तो रिवॉल्टिंग नेचर ये वो करते हैं कि पत्थर आएगा कि उसको ही कैच करेंगे और एक नहीं और भी पत्थर उठा के मारेंगे। दिस इज रिवॉल्टिंग नेचर। सो रिवॉल्टिंग नेचर्स लाइक मर्क्यूरी, कॉस्टिकम, नक्सोमिका एटसेट्रा, वेरी एंग्री qualities of mind, hates being intimidated, and the last one probably a Bufo, Baraita, Ikuza has no capacity to understand. इनमें कैपेसिटी नहीं होती है कि कुछ नया करके दिखाएं, कुछ एकदम फास्ट ओन डिसीजन ले, नो। सो इसीलिए बराइटा, बुफो, इतुजा हैज नो कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग द ग्रेविटी ऑफ अ सिचुएशन। तो ये है इस इन मेडिसिन की जेनेटिक कोड, ये उनमें जेनेटिकली आया हुआ है। यस, सो दिस इज द फिजिकल स्ट्रक्चर, therefore is defense oriented. So इनका फिजिकल स्ट्रक्चर उसी तरह से होगा जो उनके जीन्स में डिफेंस मैकेनिज्म बाय नेचर आए हुआ है, राइट। सो द नेक्स्ट para, that is the disease pathologies, as we already saw, are due to the three defense mechanism at work. Like all the properties of a cell, even the three defense responses to a stimulus are genetically governed. Whether the cell should inflame, indurate, or ulcerate. So these three words are the main words of the miasm: inflame, indurate, and ulcerate. Depends upon the genetic code character of the cell.
So inflamed, that is Sora, indurate is psychosis, and ulcerate is syphilis. The very existence of a man is defense oriented. अगर ये डिफेंस ओरिएंटेड नहीं रहता था तो हर इंसान कुछ भी होगा, छोटा सा भी कुछ होगा तो डेथ. इसीलिए एग्जिस्टेंस ऑफ मैन इज डिफेंस ओरिएंटेड. हमें जो डिफेंस बाय नेचर बाय गॉड मिला है, इसीलिए हम हमारा लाइफ पूरा जी सकते हैं. Okay, so the physical structure is defense oriented. The mental attitude and behavior is possesses is defense oriented. Even diseases which he suffers is defense oriented. This means the physical makeup, mental makeup, general makeup, and the disease susceptibility of an individual depends upon defense. We know that all these makeups are arising from genetic code and are genetically governed. If all these are defense oriented, then even the cure, the real cure should be defense oriented. Aim of real cure have to be by boosting the defense mechanism of the individual rather than attacking the hostile stimulus. Rightly so, Dr. Hahnemann denounced the concept of treating the disease in man and proposed the concept of treating man in disease. He proposed that the treatment should be done only by taking into consideration the mental makeup, physical makeup, general makeup, all of which are product of the genetic code and hence reflect the defense trait or mild. Yes. तो अगर होल मैन को ट्रीट करना है, होल मैन को क्योर करना है, तो हमें ये मेंटल मेकअप, फिजिकल मेकअप एंड जनरल मेकअप कंसिडर करना पड़ेगा. क्योंकि वो मेंटल मेकअप बिकॉज ऑफ हिज जेनेटिक कोड बना है, फिजिकल मेकअप बिकॉज ऑफ हिज जेनेटिक कोड बना है, जनरल मेकअप बिकॉज ऑफ हिज जेनेटिक कोड बना है. तो इसीलिए हम अगर उसे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल मिनिमम देना चाहते हैं तो हमें वो जेनेटिक कोड कंसिडर करना पड़ेगा, वो जेनेटिक डिफेंस मैकेनिज्म उसका कंसिडर करना पड़ेगा जो उसे बाय बर्थ मिला है, बाय नेचर मिला है. यस, सो all the reaction essentially defends you to help the individual to evade injury and survive are built up on innate characteristics inherited or acquired by the individual. These innate characteristics also decide the physical structure contours, which again is designed to defend and survive. The whole genetic setup of an individual is then designed to ensure that the mind, physique, tolerance, likes, dislikes, as well as the susceptibility to diseases are designed for prolonged survival of the individual. तो जो भी हमें by nature मिला है, जो भी हमें by God ने दिया है, it is for survival. Survival of individual. Prolonged life होने के लिए, क्योंकि 24/7 हमारे ऊपर hostile force, morbid force continuously attacking करता है to take the life, और जो life giving force है वो continuously in action होता है to prolong the life. Miasm is defense and defense is the influence by the genetic code. देखो कितना अच्छा लिखा है. Miasm is defense. Miasm is nothing but the defense, and defense is influenced by the genetic code. So we can safely deduce that miasm is influenced by genetic code. Every individual inherits from parents or acquires qualities to defend itself mentally and physically. These qualities are already imprinted to get imprinted on his genetic code as traits. जो कुछ होता है जीन्स में होता है, माइजम बोलो या फिर जेनेटिक कोड बोलो, उसका मेंटल मेकअप, फिजिकल मेकअप, जनरल मेकअप, सब कुछ मेकअप होता है इन द जीन्स.
वैसे ही उसका miasmatic makeup also makeup in the genes. Yes. Thus, a Soric constitution is the constitution of makeup of an individual which is designed by physically, mentally, generally, and different physiologically. Similarly, psychotic constitution morphologically, constructively, and the syphilitic constitution morphologically, destructively. Yes, and all this is encoded into the genes. All these informations are encoded into the genes. Yes. So this is the chapter number 13. Miasm and the genetics genes. Yes. तो इस पे कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं. Yes. फिर हम देखेंगे miasmatic constitutions किस तरह से होती है. Soric constitutions कैसे होते हैं, psychotic constitutions कैसे होते हैं, syphilitic constitutions कैसे. Yes. अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है इस चैप्टर पे, तो आप right now you can ask. Or we will proceed to the chapter number 14. Miasmatic constitutions. Having established connections between genetic trait and miasm, we proceed to understand individual miasmatic constitutions. Soric constitution. Individual born with predominantly Soric constitutions have an innate and predominant tendency to fight all the invasions, whether they are pathogens, toxins, or on mental plane the emotions by physiologic defensive responses of the cell and the tissue. Yes. तो Soric constitution है तो डेफिनेटली उसकी बॉडी, उसका माइंड सोरिक वे से ही डिफेंस करेगा, सोरिकली ही डिफेंस करेगा. तो दिस पीपल आर बाउंड टू गेट इजी इंफ्लामेशन. तो सोरिक डिफेंस किस तरह से होगा, तो पट से अगर बॉडी पे कुछ होता है, किसी ऑर्गेनिज्म या फिर कुछ इंजुरियस एजेंट का अटैक होगा, तो क्या होगा, बॉडी पट से रिएक्ट करेगी इन द फॉर्म ऑफ इंफ्लामेशन. उसी तरह से अगर मेंटल कुछ अटैक माइंड पे होता है, तो माइंड किस तरह से बिहेव करेगा, तो इरिटेशन, एंगर, इमीडिएटली लाइक दिस. So these people are bound to get easy inflammation, easy irritation, easy infections, easy pains or hypersensitivities as far as physical diseases are concerned. So this is the Soric constitution, Soric constitutional defense mechanism. So patients who get dermatitis, rhinitis, tonsillitis, bronchitis at the slightest provocation, इनकी सेंसिटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि थोड़ी ठंडी हवा भी आ गई, कोल्ड एयर, चिल्ड एयर, तो इनके टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, है ना, कोराइजा साइनोसाइटिस हो जाएगा. दिस इज बिकॉज ऑफ सेंसिटिविटी एंड दिस इज प्राणायाम कर लगी मोले. Change of food, weather, emotions, etc. are Soric constitution. These diseases, as we know, predominate younger children and death in middle age or old age. Those who have inherited physiological defense or SORA in their genes do not switch gears easily to morphological defense, psychosis or syphilis. In such constitution, suppression do not take place easily. Yes. तो जो बेसिकली सोरिक होते हैं by birth,
जेनेटिकली सोरिक होते हैं वो पर्सन्स, most of the persons, most of the constitutions remain in Sora at long life, long interval of life. लाइफ के बहुत साल तक ये सोरा में होते हैं. हम देखते हैं कभी कभी कोई कोई पेशेंट में एट द एज ऑफ 60 they suffer from the soric problem like eczema on the body, eruptions on the body. तो स्किन की सेंसिटिविटी देखो एट द एज ऑफ 60 इंक्रीज हो, तब वो पर्सन सोरा में गए. लाइफ लॉन्ग उनकी हिस्ट्री मिलती है कि लाइफ लॉन्ग हमें कभी कोई मेडिसिन लेने का काम नहीं पड़ा, कभी कोई इंजेक्शन लेने का काम नहीं पड़ा, कभी कोई हॉस्पिटल में एडमिट होने का काम नहीं पड़ा, कभी कुछ नहीं हुआ, लाइफ लॉन्ग हेल्दी. और अभी उनमें सोरा गेट्स अफेक्टेड. तो इस तरह के सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं कि वो जल्दी गियर चेंज नहीं करेंगे, माइजमेटिक गियर चेंज नहीं करेंगे, वो सोरा से साइकोटिक में जल्दी नहीं जाएंगे, सोरा टू सिफिलिटिक में जल्दी नहीं जाएंगे. These are basically pure soric constitutions. So in such constitutions, suppression do not take place easily, और in persons में suppression भी जल्दी होते नहीं. The disease may travel from one system to another, but retain its expression as irritation or inflammation. और इनमें कभी भी कुछ भी हुआ तो ओनली इनकी रिएक्शन रहेगी inflammation, irritation. So soric individuals show dermatitis or boils in the skin. That is the first layer. Being converted into rhinitis, pharyngitis. That is the second layer. A bronchitis disappearing or an asthma getting relieved by partial cilium may show up as arthritis or spondylitis. If this soric constitution, अगर इनमें कोई पर्सन है और उसे सोरिक कुछ प्रॉब्लम्स आए, सोरिक कुछ डिजीज हुआ लाइक डर्मेटाइटिस, और उसे कुछ रॉन्ग मेडिसिन दिए गए, बिकॉज ऑफ हाई सेंसिटिविटी दैट पर्सन गेट्स सप्रेस इजीली. और वो अगर राइनाइटिस इरप्शंस के लिए मेडिसिन दिया, कुछ रॉन्ग मेडिसिन दिया, या फिर बहुत एक्स्ट्रा मेडिसिन वहां पे 2, 3, 4 मेडिसिन दिए गए, तो ऐसे पेशेंट्स में वहां सप्रेशन होके दैट सिंपल डर्मेटाइटिस गेट सप्रेस एंड आफ्टरवर्ड rhinitis start, sinusitis start, and after that if he treated with a lot of medicines for rhinitis, sinusitis, this again gets suppressed and start the joint pains. Afterward, soric individuals show dermatitis, boils in the skin, converted into rhinitis, pharyngitis, and afterward bronchitis, disappearing on the asthma, getting relieved, and partial cilium may show up as arthritis, spondylitis, third layer, sciatica, spondylitis, or joint pain disappear with partial cilium could result in volatile hypertension or the stress hypertension or ischemic heart disease, which is characterized by what the cardiologists call as unstable angina. The unstable angina, as the name suggests, has instability which is associated with the biochemical changes in the intima of the arteries. The soric ischemia or lack of blood supply to the heart is due to spasmodic constriction of the blood vessels rather than any concrete structural obstruction associated with arteriosclerosis, which has origin in psychosis. So this SORA may get suppressed and converted into the psychosis. So the physiologic nature of defense caused due to the sheer biochemical changes in the cell and tissues offer a sense of fluidity, changeability, or instability to soric symptoms. So these are the symptoms of SORA, that is fluidity, changeability, and instability. Instability, जो unstable angina बोलते हैं, that is the unstable means it is not a stable, it is soric. So
which can best be termed as high dynamism. The symptoms of SORA, therefore, will essentially be of sudden onset of paroxysmality or the intensity of pains or redness with changeability, and to respond to treatment and is associated with very fast recovery. Yes. So this is the pure SORA, and these are the symptoms of SORA, the nature and characters of SORA. And now the psychotic. So how SORA convert or gets converted into psychosis? Individual born with predominantly psychotic constitutions have an innate and predominant tendency to fight all the invasions, whether they are pathogens, toxins, or on mental plane, the emotions. By constructive defense responses of the cell and tissue, these people are bound to get easy constructions, easy growths, easy thickenings, tumors, chronic non-resolving inflammation, So inflammation chronic ban jate, that is psychosis. So in the insidious disease like diabetes, high blood pressure, anemias, hyperlipidemias, ischemias are common at an early age. Warts, moles, tumors, keloids thrown up externally gives us an indication that the patient has entered the psychotic defense stage. So these are the diseases and the characteristics or symptoms of psychosis. So patients get primarily inflammation and go into constructive pathology is the psychotic constitution. Wounds and injuries are deceptive, never clean cut, nor do any heal neatly and cleanly like psoriatic constitution. Psoriatic constitution के wounds जो होते हैं बहुत ही क्लीन होते हैं और जो भी कट होगा वो superficial कट होगा and wound always clean. This is psoriatic wound and psoriatic wounds always heal psorically. That means very neatly, cleanly. वहां पे scar mark भी नहीं होगा. This is psoriatic healing of wounds. और वही साइकोटिक हीलिंग, साइकोटिक वुंड कैसे होंगे? लार्ज होंगे, है ना, स्वेलिंग, देन प्रोफ्यूज पस, और उस वुंड का हीलिंग किस तरह से होगा? तो बिग लार्ज स्कार और किलोइड डेवलप at the site of scar. So this is the psychotic wound, and syphilitic wounds are irregular, deep, profuse bleeding, है ना, आड़ा टेढ़ा कटेवा फटेवा. This is syphilitic. उसका हीलिंग भी उसी तरह से होगा, बहुत दिन तक हीलिंग नहीं होगा, अल्सर बन जाएगा, ब्लीडिंग होते रहेगा, पेन आउट ऑफ कंट्रोल रहेगा. This is syphilitic. So the patient gets primary inflammation and go into the constructive pathology easily. Wounds and injuries are deceptive, never clean cut, nor do they heal neatly and cleanly like psoriatic constitution. They are deep inside and concealed with yellow or green colored discharge, deposition of pigment, hence blackening of skin or wounds is a rule in this miasm, that is psychosis. These diseases, as we know, predominate middle age. Yes, psoriatic age is 0 to 20, and above 20, it is the psychotic age up to 40, and above 40, that is 40 to 60, 70, 80, 90, is syphilitic age. So these diseases, as we know, predominate middle age group. The SORA is evident more in infants, children. Psychosis is middle age, and the syphilis in old age. Yes. So this is the psychotic constitution. And now, lastly,
the syphilitic constitutions. Individual born with predominantly syphilitic constitution have an innate and a predominant tendency to fight all the invasions whether they are pathogens, toxins, or on mental plane, the emotions, by destructive defensive responses. Soric always gives rise to, if the genetic code of constitution or genes encoded with Sora, then this constitution always gives response like a Soric response, like a inflammation. So destructive defense responses in syphilis, constructive defense responses in psychotic. So of the cells and the tissue. So body का each and every cell उसी तरह से behave करेगा, उसी तरह से defense करेगा, उसी तरह से reaction देगा जो उसके genes में encoded. So these peoples are bound to get easy destruction, easy hemorrhages, easy overwhelming infections, septicemia, excruciating pain, out of control pain, hysterical hypersensitive sensitiveness, fracture that are complex, cracks and ulcers that bleed easily as far as physical diseases are concerned. So these are the diseases and their characters of pathologies in the syphilitic destructive defenses. So patient gets primary inflammation and go into the destructive pathology easily. हम बहुत बार देखते हैं कि ना न्यूमोनिया होगा और न्यूमोनिया के बाद सिंपल कोल्ड कोराइजा था, then converted into pneumonia and afterward patient died. फीवर आया, सिंपल फीवर आया में उसके बाद मेनिंजाइटिस हुआ, मेनिंजाइटिस के बाद पेशेंट डाइड. दिस इज द सोरा gets converted into syphilis and patient died. So this is basically the syphilitic constitution. So patient gets primary inflammation and go into the destructive pathology easily. Wounds are never clean cut, nor do they heal neatly and cleanly like soric constitution. Distortion and disfigurement is a rule in this miasm. Distortion and disfigurement is the rule of this miasm, syphilitic miasm. Syphilitic miasms wound, syphilitic wounds heals syphilitically. So these diseases, as we know, predominate older age groups. Thus, SORA is evident more in infants, children, psychosis in middle age, and syphilis in old age. So this is the miasmatic constitutions. तो हमने miasmatic constitution देखा, soric constitution देखा, psychotic constitution देखा, and lastly the syphilitic constitution. Yes. So अभी सर ने इसमें एक केस दी है, तो हम वो केस हमारे पास कोई 5-6 मिनट बाकी है, हम केस कवर कर लेते हैं. ओके, सो a child of 5 months come with the chief complaint of blindness. 5 months child and the chief complaint is blindness. The child cannot smile, was diagnosed as blind since birth. The mother insisted that the child used to smile and respond very well to her beckoning until the age of 3 months. देखो मदर क्या कह रही है कि ये रिस्पॉन्स कर रहा था, ये स्माइल भी देता था up to 3 months. She refused to believe the diagnosis of the birth defect. जो डॉक्टर ने उसका डायग्नोसिस बनाया कि by birth he is blind, but the experience of that mother says he is not blind by birth. Yes. So on inquiry, it was found that the child was vaccinated at the age of 3 months. And afterward, he suffered that blindness. The child had a mild rash on the body, after which
some cough and cold for a few days persisted, which was better after treatment. This was no other major. There was no other major problems after that. Generally, with due respect to the pediatrician's diagnosis to congenital health problem like diabetes, blindness, autism, mutism, cerebral palsy, epilepsy, etc. should not be relied upon and should be taken with a pinch of salt. Yes. जो भी डायग्नोसिस सर कहते हैं कि जो भी डायग्नोसिस हमें इन डॉक्टर से, इन फिजिशियन से मिलते हैं, तो जब तक हम वो पेशेंट से कंफर्म नहीं करते उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए. द मेन कंफर्मेशन हमें पेशेंट से ही मिलती है. सो द मदर्स ऑब्जर्वेशन अबाउट द चाइल्ड बीइंग नॉर्मल और एबनॉर्मल इज मोर रिलायबल. यस, the modern day physician does not have thorough knowledge of what harm can the modern therapeutics drugs can do to the young child. They are blissfully unaware of the destructive effect of the multitudes of the vaccinations that can cause havoc in the child's immunity. Nor are they aware of mild, seemingly being benign eruptions on skin metastating into epilepsy or tumors. In the child, the vaccination had set up a series of chain reactions in the body which ended up as degeneration of the retina. देखो, सिंपल वैक्सीनेशन से क्या हो गया कि रेटिना को डिजेनरेट कर दिया. The child was a strong syphilitic constitution, and hence, after the initial psoric physiological defense reaction on the skin, the genes were forced to change the gear of defense to destructive defense. मतलब, this child's miasm, this child genetically built up with the syphilitic miasm. तो genes by birth वो syphilitic लेके आए, इसलिए सोरिक रिस्पॉन्स वहां आया, एंड दैट सोरा फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड एंड गेट्स कन्वर्ट इनटू द सिफिलिटिक सडनली. So to destructive defense at the level of neuroectoderm, that is the retina, and that too is in short period of 1 month, we can here conclude that child's disease had gone from ectoderm to the endoderm and to straight neuroectoderm 6th layer instead of mesoderm. So indicating a remedy which does not follow the rule, that is the hysterical remedy. Enough. First layer to direct third layer. So the hysterical remedy, hysterical treat. The remedy had to be fast in speed, looking at the speed at which the disease had progressed. Therefore, a destructive, syphilitic, fast, revolting, chilly, and thirsty remedy which is badly influenced by bad effect of vaccination was selected, and that was the Merck salt. So the genetically syphilitic constitutions होते हैं, that is the mercurius. So this is the miasmatic constitution. तो इसी तरह से हमें ड्रग की भी स्टडी करना है, मेडिसिन की भी स्टडी करना है कि which medicines are constitutionally soric, constitutionally psychotic and constitutionally syphilitic. इस तरह से अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी समझ में आएंगे, मेडिसिन भी समझ में आएंगे, एंड इट इज वेरी इजी टू सिलेक्ट द रेमेडी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशंस. Yes, and that is we can say it is a constitutional remedies. तो सर ये सर हम लोग जी तो कैसे समझेंगे सर हम सब कौन सा ड्रग कॉन्स्टिट्यूशनल कैसा है एट चाइल्डहुड? जब उसे पढ़ेंगे. अच्छा तो पढ़ाएंगे ना सर? हाँ, इसलिए ठीक है सर. यस, राउत जी बोलिए. सर वो रैशेस को यदि वो उसने ट्रीट नहीं करते थे तो फिर वो सिफिलिटिक में जा सकता था क्या नहीं जा सकता था? अभी ब्लाइंडनेस आ गया है उसमें नहीं क्या
जैसे वैक्सीनेशन, आफ्टर वैक्सीनेशन के बाद में उसको रैशेस आए। यस, हाँ, तो वो रैशेस को उसको ट्रीट किया ही नहीं, रैशेस आए और पट से चले गए और दैट फिर टॉक्सिन भी गोज इनटू फर्स्ट टू 6 लेयर। जो ऐसे हाँ कॉन्स्टिट्यूशनली सिपिलिटिक, जेनेटिकली सिपिलिटिक कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, उनको बहुत ही माइल्ड स्टिमुलेशन चाहिए। तुरंत डिस्ट्रक्शन में जाएगा। यस, ओके सर, थैंक यू सर। और अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे भी होते हैं, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बच्चे का ऐसा था कि वो फर्स्ट लेयर से 6 लेयर में चलेगा, लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे भी हो सकते कि फर्स्ट लेयर में ही रहेंगे, और वो जो आफ्टर वैक्सीनेशन, जो भी वैक्सीनेशन, इट इज द पॉजिटिव फैक्टर हियर, तो पॉजिटिव फैक्टर कोई भी हो सकता है। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा कि इंजूरियस एजेंट कुछ भी हो सकते हैं, है ना। इंजुरी टू द सेल किसी भी पॉजिटिव फैक्टर से हो सकती है, यहाँ पे वैक्सीनेशन हुआ, लेकिन और भी कोई फैक्टर से हो सकता है। तो वो सेल इंज्योर्ड हुए, और वो अगर जेनेटिकली सिपिलिटिक है, वो सिपिलिटिक, उसके जीन सिपिलिटिक पोल्यूटेड है, तो वहां पे क्या होगा, इरप्शंस आएंगे या फिर इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन अगर उसे फर्स्ट लेयर से दूसरे लेयर में नहीं जाना है, फर्स्ट लेयर में रहना है, तो वो इन्फ्लामेशन इतना ग्रॉस होगा, उसके बाद वहां पे अल्सरेशन फॉर्म होगा, या फिर दैट इरप्शन में कन्वर्ट इनटू द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। दिस इज वेरी फास्ट कॉन्स्टिट्यूशंस, कि फास्ट सोरा आया, सोरा गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिपिलिटिक एंड फास्टली, वायलेंटली इज सिपिलिटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह से भी हो सकता है, डिपेंड करता है ऑन दैट कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमने अभी पढ़ा कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन डिफेंस करेंगे। थैंक यू सर। सो थैंक यू वेरी मच। आज बहुत अच्छे 2 चैप्टर हुए हमारे, तीनों भी मायाजम उसमें कवर हुए, राइट? सर कवर हुए। यस, एक छोटा सवाल था सर, लेफ्ट फोर आर्म पे मिलेनोसिस है, डार्क कॉम्प्लेक्शन शुरू हुआ लेफ्ट फोर आर्म पे और होल बॉडी भी पहुंच गया 6-7 महीने में। तो सर ये क्या कारण हो सकता है, रीजन क्या हो सकता है? मैंने सवाल पूछा। साइकोसिस है, मेलानोसिस, इट इज साइकोसिस। जी जी, तो वो किस कारण से उसको लेफ्ट फोर आर्म में आया, वहां पे रॉन्ग क्यों? मेडिकेशन हो सकता है, क्या हो सकता है सर? रॉन्ग मेडिकेशन से भी वो फैल सकता है ना। नहीं, मैंने दवा दिया नहीं उसको, बिना मेडिसिन का स्टार्ट हुआ जो है, विदाउट मेडिसिन, तो उसका इमोशनल फैक्टर क्या हो सकता है? क्योंकि और कोई मेडिसिन नहीं चल रहा था, उसको पहले ईचिंग हो रहा था, फिर व्हाइट पिगमेंटेशन, वो फंगल इन्फेक्शन हुआ जो है, उसके बाद से उसको डार्क कॉम्प्लेक्शन आना शुरू हो गया, और होल बॉडी में काफी जगह बहुत फैल गया जो है। यस, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड पे आया ना। लेफ्ट हैंड नहीं सर, लेफ्ट फोर आर्म, लेफ्ट फोर आर्म। लेफ्ट फोर आर्म पे आया, तो फोर आर्म का क्या फंक्शन होता है? सबका तो परफॉर्मेंस का ही है एप्पल का, डे टू डे एक्टिविटी सर। डे टू डे एक्टिविटी, वर्क, जो भी वर्क वो कर रहे हैं, और लेफ्ट पे है मतलब जो वर्क कर रहा है, तो वो वर्क हो सकता है कि वो छुपाना चाहता है फ्रॉम मदर, फ्रॉम फैमिली। मेलानोसिस, इट इज हाइडिंग। अच्छा, यस, तो क्या वो काम करना नहीं चाह रहा है? करना नहीं चाह रहा है, या फिर जो कर रहा है वो उसे छुपाना चाह रहा है। छुपा के करना चाहता है। किसी को पता ना चले। अच्छा, ऐसा काम करे कोई जान ना पाए। हाँ, अच्छा, देखो कुछ ब्लैक काम कर रहा है क्या, क्योंकि ब्लैक हो रहा है ना पार्ट मेलानोसिस। तो लेफ्ट फोर आर्म में हो रहा है, क्या हो सकता है सर? मैंने उसको इग्निशिया दिया। क्या दिया इससे मतलब नहीं है, पहले जी, आप, हाँ, एनालिसिस समझ लो, राइट। तो उसे और डिटेल में जाओ, पूछो, हर बात कंफर्म करो उससे कि ऐसा क्यों हुआ। सर हाँ, तो मेरे को कजेटिव फैक्टर मालूम नहीं था, तो मैंने उसे इनडायरेक्ट पूछा बहुत सारा क्वेश्चन, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे पाई जो है।
मैंने वर्क से रिलेटेड पूछा, बच्चों को रिलेटेड पूछा, टेंशन वो जवाब इसलिए नहीं दे पाया कि हम सही तरह से उसे पूछ नहीं पाए। इंटरप्रेट नहीं कर पाए। यस। अच्छा अच्छा, तो अपने को पूछना है कि आप क्या कर रही हो, छुपा के कर रही हो, है ना, यही निकालना है ना। ये मत पूछो, तो बताए। उसको पूछो आपका रूटीन कैसा होता है ना, तो क्या सर काम रूटीन, करते हैं, कैसा रूटीन है, क्या क्या करते हैं, कैसा रहते हैं। तो रूटीन के बारे में मैंने पूछा था, तो बोल रही थी सास, पहले बोल नहीं रही थी, एवर्जेंट टू आंसर थी, किसी तरह से ओपन हुई। तो उसने कहा था कि सुबह 3 बजे उठते हैं तो काम करते हैं, घर का काम करते हैं, खाना बनाते हैं, फिर सासू माँ के साथ काम करने जाते हैं, फिर 11 बजे तक ये आते नहीं, हैं। ये नहीं, ये नहीं, पूरा डिटेल में लो, डिटेल में लो। ये तो रूटीन कोर वर्क हुआ उसका। तो कौन सा काम सर, वो तो पूछो ना पूरा डे उसकी लाइफ। पूरी लाइफ लो ना, उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री पूछो बचपने से अभी तक। वो 7 महीने से ओरिएंटेड हुआ, मैंने 1 साल पहले का पूछा तो कि 1 साल आप से क्यों काम। 7 महीने का ही पूछ रहे हैं? आप पहले से पूछेंगे तो वो खुलेगी ना आपके सामने। पहले से पर्टिकुलरली पर्टिकुलरली पूछेंगे तो पर्टिकुलर आंसर आएगा ना। मैंने सर पहले का सवाल पूछा, शादी के पहले का, तो 6 बहन थी और एक भाई है, तो बोल रही थी वहां पे भी मैं बहुत ज्यादा काम करती थी, सबसे ज्यादा मैं ही काम करती थी। मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, किस तरह से सिम्टम निकालना, पेशेंट से किस तरह से हिस्ट्री निकालना। अभी आप ये उसे उस पर अप्लाई करो, आपको 100% उसमें कुछ ना कुछ नया मिलेगा। कैसे पूछना है? और बहुत से पेशेंट फर्स्ट विजिट में ओपन अप नहीं होते हैं, है ना। जैसे कि जी। जो स्नेक ग्रुप पे होते हैं, है ना, जो टिमिड पर्सन होते हैं, वो पर्सन रिजर्व पर्सन होते हैं, वो फर्स्ट विजिट में आपसे ओपन नहीं होंगे। फिर जैसे उनका फेथ आप पे आएगा तो वो धीरे धीरे हर बात बताने को रेडी हो जाते हैं। पहले हम बोलते फिर पहले मैंने ये नहीं बताया, अभी मुझे ऐसा लगा कि ये भी बताना चाहिए आपको, लाइक दिस। तो प्रोसेस कैसे होगा सर, क्या कैसे पूछे सर? सिंस बर्थ उसकी पूरी हिस्ट्री ले लो, अच्छा अच्छा। चाइल्डहुड से लेके तो अभी तक। उसका टाइप ऑफ वर्क देखो क्या है, काय में इंटरेस्ट है उसको, किस किस बातों में, किस किस वे से उसका इंटरेस्ट जाता है। उस पर से फिर आपको क्लूज मिलेंगे कि अरे इस तरह से हिस्ट्री उसकी लेनी चाहिए, ये भी पूछना चाहिए, वो भी पूछना चाहिए। यस, एक जनरल आइडिया वहां से आपको क्रिएट होगी। अच्छा, यस। ओके। यस। ओके, सो शुड आई स्टॉप हियर? ठीक है सर, देखते हैं पूछ के एक बार, जी। कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या बात आती है। यस। यस। अच्छा सर, इसके लिए तो अपने को वो रूब्रिक लेना होगा, स्किन डिस्कलरेशन ब्लैक जो है। नो, वो पर्टिकुलर रूब्रिक हुआ, साइकोटिक केस है। अच्छा, उसको लेना ही नहीं है। नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू ऑल गाइस। पर्टिकुलर रूब्रिक कब लेना है? सर सिपिलिटी, पर्टिकुलर रूब्रिक कब ले सकते हैं? सिपिलिटी सर, केस। तो सर वो जनरल हुआ ना, पूरे बॉडी में हो रहा है उसको डिस्कलेशन ना, तो पर्टिकुलर क्या चाहिए? अभी उसको वहां से पूरे बॉडी में हो रहा है। आप डिजीज सिम्टम ले रहे हैं, डिजीज सिम्टम्स आर द पर्टिकुलर सिम्टम्स। अच्छा, यस। तो सिफिलिटिक केस में केवल लेना है पर्टिकुलर, मतलब पैथोलॉजी लेना है सिफिलिटिक केस में। यस। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। हेलो थैंक यू सर। यस। ओके, सो thank you very much guys, thank you, bye bye, see you tomorrow. No, Monday. Yes. Okay, so शिवरात्रि की सबको शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर हेलो यस डॉक्टर कंसे। सर देर आर सर्टन एज चिल्ड्रंस रहते हैं कुछ चिल्ड्रंस फ्रॉम द आपका एज ऑफ आपके सराउंडिंग में, चिल्ड्रंस या सराउंडिंग में नॉइस है आपके? नहीं है ज्यादा है अभी? नहीं, अभी नहीं है। हाँ
Those children from the age of between 3 to 16 years के बीच में कुछ there are certain children which doesn't grow, you know, in spite of they eat well now, they doesn't grow well, you know, physically, or even they cannot build their this muscle build नहीं होता है, they are just thin and grow. So whether how to approach in these cases, we got a lot of progress over these emaciations with in spite of eating well they are not growing well, you know. There are a lot of children, they have got good appetite and no this weight. So whether तो इसका how मतलब क्या है this कि वो will improve. जेनेटिकली उस तरह से वो इंफॉर्मेशन लेके आए जीन्स, वो कॉन्स्टिट्यूशन उस तरह से बना है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के जीन्स उस तरह से, मतलब जीन्स में जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज हो उस इस तरह से सिंथेसाइज हुए कि मुझे ज्यादा बड़ा होना नहीं है, मुझे ज्यादा डेवलप होना नहीं है। तो ये जो थिंकिंग आई है ये कहाँ से आई? तो देखो मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर के साथ क्या हुआ था कि भाई ज्यादा बड़ा होके कोई मतलब नहीं है ना, ज्यादा ताकत होके कोई मतलब नहीं, ज्यादा डेवलप होके कोई मतलब नहीं। तो ये क्यों आया, ये आपको निकालनी पड़ेगी मदर से इंफॉर्मेशन, फिर वो इंफॉर्मेशन लेके उस पे उसको कन्वर्ट करके वो रूब्रिक्स लेके जो मेडिसिन आएंगी वो मेडिसिन वो जीन्स को स्टिमुलेट करेगी, और वो जो भी डिफेक्टेड जीन्स आए वहां पे कि डेवलपमेंट होने नहीं दे रहे वो करेक्ट हो जाएंगे और उस बच्चे की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। Okay, लेकिन अभी मदर्स हिस्ट्री अभी दैट चिल्ड्रंस आर बिलो मदर्स प्रेगनेंसी हिस्ट्री, हाँ दैट्स व्हाट, बट अभी प्रेगनेंसी के टाइम पे वो बोलते कि नहीं, मोस्ट ऑफ देम डोंट गिव द पॉजिटिव हिस्ट्री, कुछ नहीं, यू नो दैट देखो सिग्निफिकेंस नहीं ये मिलता। जो भी मदर्स बोलते हैं, जो भी पेशेंट ऐसा बोलते हैं कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं, 100% समझ लेना कि वहां बहुत कुछ हुआ है। ओके ठीक है, सो आई और विल आस्क नाउ, ये लेट्स जब सी। ये फर्स्ट जब हम सवाल क्वेश्चन को पूछते हैं ये भाई ऐसा क्या हुआ, ये ऐसा कुछ हुआ था क्या, तो फर्स्ट उनके लिए ये एकदम नया क्वेश्चन है, वो ये क्वेश्चन की डेप्थ समझ ही नहीं पाते हैं कि ये क्यों पूछ रहे हैं डॉक्टर हमारे को, उनको ऐसा लगता है कि ये ऐसे ही पूछ रहा है, वैसा नहीं होता है। इसलिए वो बात को समझने के लिए उनको थोड़ा टाइम लगेगा। उनको जब ये बातों की सब सीरियसनेस हम समझा देते हैं, पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि हम ये क्यों पूछ रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन किस लिए चाहिए, ये इंफॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, इस इंफॉर्मेशन की वजह से जो मैसेज आपके थ्रू आपके माइंड से ब्लड थ्रू जो बेबी को गया वो क्यों गया और कैसे गया, वो बेबी ने उसको किस तरह से रिएक्ट किया, जो रिएक्शन आपके सामने दिख रहे हैं कि उसकी डेवलपमेंट नहीं हो रही है, तो ये क्यों हुआ, तो बिकॉज ऑफ यूर थिंकिंग ऐसा हुआ। तो ये थिंकिंग आपके माइंड में क्यों क्रिएट हुई, आपके माइंड में ये थिंकिंग क्यों आई जिसकी वजह से वो मैसेज गया, ये सब इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है, क्योंकि हमें इस बच्चे को अगर ट्रीट करना है तो ये बहुत जरूरी है। ये जब इंपॉर्टेंस हम पेशेंट को देंगे, ये अंडरस्टैंडिंग का इंपॉर्टेंस पेशेंट के समझ में आएगा, तभी वो आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन देंगे। ओके बट सर, हाँ, but the thing is, you know, like we saw, अभी अपने पास rubrics है, patient you know loses flesh in spite of eating well, तो ये rubrics फिर ऐसे कैसे consider करने हैं क्या? Because and even have you come across the children who have grown weight wise or health wise? क्योंकि there are a lot of people comes for ये उन बच्चों में आएगा रूब्रिक जो जैसे आयोडम टाइप बेबीज होते हैं कि जो बहुत खाते हैं लेकिन आंख को नहीं लगता, उनकी डेवलपमेंट नहीं होती है, लूजिंग फ्लैश, है ना, खा रहे बहुत लेकिन फायदा कुछ नहीं हो रहा, उन बेबीज में जाएगा ये रूब्रिक। लेकिन सर दे सकते हैं ऐसा रूब्रिक के हिसाब से और वही मेडिसिन? बोल रहा हूं मैं, आगे सुनिए कि अगर आपको उस पेशेंट से पॉजिटिव फैक्टर परफेक्टली मिल गया तो साइड में आप ये रूब्रिक ले सकते हैं, लेकिन ये रूब्रिक लेने के लिए उस बेबी में वैसा है क्या वो भी कंफर्म करना पड़ेगा, उस तरह से है तो आप वो एडिशनल रूब्रिक ले सकते हैं वहां, लेकिन ये रूब्रिक वो पैथोलॉजी कवर नहीं कर रहा है जो पैथोलॉजी लेके उसके जीन्स आए हैं। Right? लेकिन सर जीसीएस देंगे तो फिर वेदर दे विल इंप्रूव इन देयर वेट एंड ये सब में? यस ओनली वेल, मतलब वेट में ही नहीं है तो हर इसमें डेवलपमेंट होगी, उसकी बॉडी के हर सेल में डेवलपमेंट होगी। सर हर्टूसीज में के केस में जो हमने बात किया था उस दिन, जो फेस पे हेयर आता है, तो उसमें रूब्रिक लेना पड़ेगा कि नहीं? हर्टूसीज में फेस ये रूब्रिक लेना होगा कि नहीं?
पर्टिकुलर पे साइकोटिक केसेस में मत जाओ। ये साइकोसिस है सर। एक Yes. फीमेल मेल बन रही तो साइकोसिस है। ये तो Yes. अननेचुरल है ना सर। साइकोसिपिलिटिक है ना, एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ हेयर्स, दिस इज साइकोसिपिलिटिक। अच्छा सर, तो इसको नहीं लेना है पर्टिकुलर। नो, साइकोटिक केसेस भी मोस्टली अवॉइड करो। सिपिलिटिक केसेस यू कैन टेक द डायरेक्ट पैथोलॉजिकल और पर्टिकुलर रूब्रिक्स। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा हो रहा है, मतलब एक्सेस हो रहा है, इसलिए आ रहा है, इसलिए साइकोसिस हुआ, साइकोसिपिलिटिक। यस, अच्छा अच्छा सर, हम तो ले लिए थे। ठीक है जी, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। सो थैंक यू वेरी मच। आप जो लेक्चर के बाद ये जो लेते हैं ना डिस्कशन, ये जैसे सर लेते थे ना हमेशा, लेक्चर तो होता था, उस पर क्रीम रहता है, ये आपका इंफॉर्मेशन इस पर क्रीम रहता है, बहुत इंफॉर्मेटिव रहता है सर। ये हमसे बात हो रही है कि और किसी से बात हो रही है? आप ही से बात हो रही है सर। कौन बोल रहा है? हैंड राइज कीजिए। एक मिनट सर। या फिर आपका वीडियो ऑन कीजिए। योगिता Yes, sir. दौलताबाद। यस सर, यस। क्या क्या पूछ रहे थे आप? थोड़ा धीरे पूछिए, मतलब आप वो हमेशा सर, तुम्ही नेहमी लेक्चर नंतर जी इन्फॉर्मेशन देता ना, ती विजयकर सर जसं एक एक शब्द सरांचा महत्वाचा असतो ना सर, तसं तुमचं लेक्चर बरोबर ही इन्फॉर्मेशन म्हणजे खूपच महत्वाची असते, खूपच महत्वाची असते, अच्छा अच्छा. खूपच महत्वाची, म्हणजे त्याच्यामध्ये खूप इन्फॉर्मेटिव्ह असते. म्हणजे असं असं असते ना सर, आपण सरांच्या लेक्चरला असं अजून अजून 2 तास चालू दे, अजून 1 तास चालू दे, असं वाटायचं ना सर. तुमच्या लेक्चरला पण तसंच वाटतं, की अजून हो. अजून अजून थँक्यू, अजून चालू दे, थांबूच नाही असं वाटतं सर. थँक्यू व्हेरी मच, थँक्यू व्हेरी मच. मला वाटलं तुम्ही काहीतरी क्वेश्चन विचारत आहे, परंतु ते ऐकायला नव्हतं येत बरोबर. थँक्यू व्हेरी मच सर, थँक्यू. नाही सर. सर टेल मी अबाउट थँक्यू सर. एब्डोमिनल हर्निया, जरा थोड़ा सा सर रिपीट। कल ही तो हुआ हमारा एब्डोमिनल हर्निया का। सर एक बार मैंने वो सुना नहीं एग्जैक्ट, प्लीज रिपीट कर सकते हैं 2 मिनट। लाइट डिजायर सर। कल का मैं पूरा आपका अपना ये आपको डाल देता हूँ इस पे। ओके सर, ओके ठीक है, चलिए ओके सर, थैंक यू। चलो, सो थैंक यू वेरी मच। हम मिलेंगे मंडे sir. को। जब तक के लिए थैंक यू थैंक यू सर। बाय बाय, गुड डे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सबको हैप्पी महाशिवरात्रि। थँक्यू सर. यस, शिव जी, भगवान शिव जी सबके माइंड में होम्योपैथी को फिट कर दे। सो थैंक यू।